ગુડ ઇવનિંગ ફ્રેન્ડ્સ, ગરબાગ્રાફી સિઝન 2 માં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત છે. સો આજે ગરબાગ્રાફી સિઝન 2 નો લાસ્ટ ડે છે અને જેમાં આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે ડોક્ટર આકૃતિ મહેતા દેસાઈ. શી ઇઝ ઓનર ઓફ અતિના હેલ્થકેર LLP. એમણે બેસલાઇન ફિઝિયોથેરાપી, માસ્ટર ફિઝિયોથેરાપી વિથ ન્યુરોલોજી કર્યું છે. સાથે સાથે શી ઇઝ સર્ટિફાઈડ aquatic therapist as well as certified lymphedema therapist. અને તમને એક વાત જણાવી દઉં તો આ જે ગરબા ઉપર રિસર્ચ અમે કરી રહ્યા છે એમનો આઈડિયા અમે બંને સૌપ્રથમ ભેગા થઈને ડિસ્કસ કર્યો હતો. સો સી ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઇન ધીસ એક્ટિવિટી. અને આજે ઘણી બધી વાતો આપણે શેર કરવાના છે કે ગરબાથી આપણને શું શું બેનિફિટ થાય છે, કઈ કઈ રીતે બેનિફિટ થાય છે, અને ટેકનિકલી આપણને ગરબા શું હેલ્પ કરે છે. સો સી ઇઝ ઓવર હિયર. આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્વાઇટ હર ઇન ધ ફ્રેમ. એ આપણા વચ્ચે આવી ગયા છે, સો હું એમને ઇન્વાઇટ કરીશ. વેલકમ ડોક્ટર આકૃતિ દેસાઈ, કેમ છો? મજામાં મજામાં. કેમ છો અનીશભાઈ? બસ ઓલ વેલ. તમે જણાવો, મુંબઈમાં કેવી હાલત છે? બરાબર. Corona is on the top in Maharashtra, but yeah, we are trying to take precautions and we are all staying at home. That's fine. So, ma'am, ઘણા બધા લોકો એવા છે જે લોકો આઉટ ઓફ ગુજરાતથી પણ આપણી સાથે જોડાય છે. સો वी विल डू डिस्कशन इन हिंदी एंड इंग्लिश. सो हमारे साथ जो भी जुड़ेंगे उनको भी इनके बारे में नॉलेज मिले, वो लोग भी अपने साथ शेयर कर सके, ऐसे एक पर्पज से विल गो विद दैट. हमारे व्यूअर्स आ चुके हैं. सो बिफोर वी स्टार्ट द सेशन, मैम इफ यू लाइक टू टेल समथिंग टू अवर व्यूअर्स, आपको अगर कुछ बताना है हमारे व्यूअर्स को तो यू कैन शेयर योर व्यूज ओवर हियर. श्योर. मैं व्यूअर्स को यही बताना चाहूंगी कि हमारे जो कल्चरल डांसेस है, जो ट्रेडिशंस है इंडिया के, फोक डांसेस जो हमारे हैं, उसमें बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज है. फिजिकल हेल्थ मेंटेन करने के लिए ये बहुत ही अच्छा टूल हो सकता है. हम बहुत वेस्टर्न कंट्रीज से इन्फ्लुएंस है, इसके लिए हम बहुत सारे वेस्टर्न वर्कआउट फॉलो कर रहे हैं. लेकिन गुजराती गरबा हमने रिसर्च की है, जैसे कि अनीश भाई ने आपको बताया, एंड गुजराती गरबा हैज प्रूवन टू बी फैंटास्टिक एट वेरियस थिंग्स विच वी विल डिस्कस नाउ. नॉट जस्ट गरबा, ऐसे इंडिया के काफी सारे डांस फॉर्म्स है जो अपार्ट फ्रॉम गरबा, जो कि बहुत ही हेल्पफुल है और बहुत ही फिटनेस मेंटेन करने के लिए बहुत ही फैंटास्टिक टूल्स है. So please make in India and same I would like to say कि even choose Indian traditional workout. Definitely we have to do. અને સ્પેસિફિક આપણે તો ગુજરાતી અને ગરબા તો યાર છોડાય નહીં. It's in our blood. So we have to go with that. So ma'am, if you want we can start our session with today's questions. Definitely. फाइन. सो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा कि गरबा को लेके हेल्थ को बेनिफिट कैसे हो सकता है. हाउ द गरबा कैन बी बेनिफिशियल टू अवर हेल्थ. ओके, तो इसको हम ब्रॉडली कैटेगराइज करेंगे. जब हम हेल्थ बोलते हैं तो हेल्थ का मतलब हम सिर्फ ऐसे समझते हैं कि डिजीज नहीं होना चाहिए या एकदम स्लिम फिट होने चाहिए. तो सिर्फ यही हेल्थ नहीं होता. हेल्थ कैन बी कैटेगराइज्ड इन 4 to 5 dimensions. Okay. So first what we say is the physical health. Okay. Which means कि हमें कोई diseases नहीं है. हमारा body is functioning to the optimum level. हम यहाँ पे वेट का बात नहीं करेंगे, हम वहाँ पे जो आपका बायोमेट्रिक्स है उसका बात नहीं कर रहे, बट फिजिकली योर बॉडी शुड बी acting at the maximum level, optimum level required and best level possible. Okay, that is physical health. Second is your mental health or your emotional or psychological health, जो आजकल लॉकडाउन के बाद बहुत ही इन है, एंड देयर आर लॉट ऑफ केसेस यू आर हियरिंग जहाँ पे मेंटल हेल्थ का बहुत प्रॉब्लम्स आ रहे हैं लोगों को, बहुत सारे मेंटल डिजीजेस आ रहे हैं ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन. So second is your mental health, your emotional, your psychological health. Okay. And the last thing which I would say is social health.
सोशल हेल्थ Okay. क्या होता है? योर एबिलिटी टू इंटरैक्ट, योर एबिलिटी टू सस्टेन इन अ पर्टिकुलर सराउंडिंग, टीम वर्क, Okay. your Okay. ability to tolerate each other basically, right? And most Yeah. importantly, एक dimension जो हम कभी देखते नहीं है, that is your, मैं उसको health में categorize करना नहीं चाहूंगी, but that is a spiritual dimension. Okay. Okay. And in this also yoga plays, I mean Yog Garba particularly, and Garba plays a very big role. Very vital role. Yeah. 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 Yes. तो अब हम हर एक पार्ट को, अभी यहाँ पे मैं ज्यादा फिजिकल हेल्थ पे फोकस करूंगी बिकॉज आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, बट येस आई एम श्योर यू हैव टेकन समथिंग रिलेटेड टू मेंटल हेल्थ टू, एंड विल गो ऑन. हाँ. सो जैसे आपने फिजिकल की बात की, तो आज जब भी कोई सुबह में उठता है और अपने मिरर के सामने जब भी कोई खड़ा होता है, तो सबसे पहले वो अपना पेट देखता है कि भाई कितनी चर्बी है, मैं कितना मोटा हूँ या कितनी मोटी हूँ. सो मेरा फर्स्ट क्वेश्चन आज का ये रहेगा कि हाउ द गरबा इज इफेक्टेड ऑन अ फैट लॉस. वो फैट लॉस पे कैसे इफेक्ट करता है? ओके, सो गरबा वेट लॉस तो करता ही है, वो तो आजकल सबको पता है. एवरीबडी नोज कि गरबा करने से वजन कम होता है, स्पेशली जब वो नवरात्रि के 4-5 मंथ्स आने वाले रहते हैं. तो everybody starts preparing, they want to look good in that chaniya cholis and their attires. तो उससे वेट लॉस तो होता ही है, बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि सी वेट लॉस में देयर आर मल्टीपल थिंग्स. या क्या आपका वाटर कंटेंट लूज हो रहा है, या आपका मसल लॉस हो रहा है, या एक्चुअल में आपका फैट लॉस होता है. नाउ इफ यू स्टडी एक्सरसाइज फिजियोलॉजी, मतलब हम अगर एक्सरसाइज करने के टाइम पे क्या अंदर बॉडी के अंदर क्या बायोकेमिस्ट्री और क्या फिजियोलॉजी होती है, अगर हम वो ध्यान से देखें तो फिजियोलॉजी ये कहती है कि कोई भी एक्टिविटी अगर आप 20 मिनट्स के ऊपर मेंटेन करोगे और एक ही इंटेंसिटी पे मेंटेन करोगे, जिसको हम बोलेंगे स्टेडी स्टेट. ओके, अभी ये 20 मिनट्स सबके लिए 20 मिनट्स नहीं होता. किसी को स्टेडी स्टेट पहुंचने को 20 लगता है, किसी को 30 लगता है, किसी को 40 मिनट्स लगता है. बट अगर कोई एक्टिविटी हमने एक स्टेडी स्टेट पे मेंटेन की, सेम इंटेंसिटी, सेम रिदम, सेम पेस पे, तो स्टार्टिंग में जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स बर्न होते हैं, और जो ब्लड ग्लूकोज होता है, जो मसल ग्लूकोज होता है, वो बर्न होता है. बट जैसे जैसे वो एक्टिविटी का टाइम हम बढ़ाते जाते हैं बियॉन्ड 10 to 15 मिनट, तो डायरेक्ट फैट लॉस स्टार्ट हो जाता है. तो अगर आप गरबा देखेंगे तो गरबा में ऐसा ही हम करते हैं, राइट? वी मेंटेन वन पर्टिकुलर पेस एंड रिदम for at least 40 minutes, right? Minimum, yeah. And then हम उसको next level लेके जाते हैं, right? जहाँ पे हमारा beats बढ़ता है, हम speed बढ़ाते हैं, and उसको फिर हम next level लेके जाते हैं. Again next level पे वो 40-50 minutes के लिए maintain रहता है, और फिर third round जैसे रहता है जिसमें और faster रहता है. So here we are burning fat at one particular degree of workout. उसके बाद हम थोड़ा इंटेंसिटी बढ़ाते हैं, उसके बाद अगेन इंटेंसिटी बढ़ रहा है. तो इट इज अ परफेक्ट वे टू एक्चुअली लूज फैट, नॉट ओनली जस्ट वेट लॉस बट फैट लॉस. ओके. तो जैसे आपने बताया कि देयर इज सम सिस्टम इन आवर बॉडी कि भाई एक के बाद एक जो ग्रेजुअली जब हम एक्टिविटीज करते हैं तो उसके बाद ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट करता है फैट के ऊपर. जैसे हम लोग आज हम लोगों ने एक एक्टिविटी की, 1 घंटे का क्लास जनरली जाता है, उसमें 30-45 मिनट तक हम लोग गरबा खेलते हैं, एंड दैट इज कंटिन्यूस फॉर द 3 to 4 months. सो इट हेल्प्स अ लॉट टू वेट लॉस और फैट, राइट मैम? यस, एक ही इंटेंसिटी पे लंबे टाइम पर कोई भी एक्टिविटी जब आप करते हैं तो वो स्टेडी स्टेट फॉर्म हो जाता है उसमें, एंड देन यू कैन लूज फैट. And what you say about the entire body activity कि गरबा से पूरे बॉडी के मसल्स पे इफेक्ट पड़ता है during that time? या सो आई वुड से गरबा से बहुत सारे सिस्टम्स पे इफेक्ट होता है, नॉट जस्ट मसल्स. फैट पे असर होता है, मसल्स पे असर होता है, इवन बोन्स पे असर हो सकता है, बिकॉज you are actually doing a activity which is giving you loading in your lower limb. जब भी हमारे पैर पे लोडिंग आता है तो उससे बोन फॉर्मेशन होता है.
ओके, तो इवन जो लोग अगर हम ऑस्टियोपेनिक पॉपुलेशन गिने, जैसे कि 40 to 50 इयर्स ऑफ एज के बीच में लोग गिने, जहाँ पे इनका बोन लॉस होना शुरू हो जाता है, अगर वो गरबा करेंगे तो वो कंटिन्यूस लोडिंग एक्टिविटी से उनका बोन लेवल्स भी मेंटेन करने में हेल्प होगा. अच्छा, ओके ओके ओके. इवन ओवरऑल इट्स अ फिजिकल एक्टिविटी, तो मूवमेंट में मोबिलिटी इंप्रूव होती है, फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होती है, स्ट्रेंथ इंप्रूव होती है, कैपेसिटी इंप्रूव होती है, कार्डियक कैपेसिटी. वी विल सी ऑल दीज थिंग्स वन बाय वन. हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी. जैसे मैम आपने बताया अबाउट द कार्डियक एक्टिविटी के उसका इफेक्ट होता है, जैसे हमने आगे भी डिस्कस किया इसके बारे में अलग डॉक्टर्स के साथ, बट वी वांट टू नो द डिटेल कि भाई कार्डियक पे कैसे इफेक्ट करता है. एंड व्यूअर्स होप यू आर गेटिंग द वेरी यूजफुल इंफॉर्मेशन. अगर आपको कुछ क्वेश्चन है अबाउट द फैट लॉस और समथिंग लाइक दैट, यू कैन आस्क इन अ कमेंट एंड आई कैन आस्क द मैम. अगर आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो, तो मैम को मैं पूछूंगा. तब तक हम आगे बढ़ रहे हैं. जैसे मैम ने हमारे साथ पहला टॉपिक लिया है, इट वाज अबाउट द फैट लॉस, कि हमारे बॉडी के फैट कैसे गर्भा को लेके रिड्यूस होते हैं, राइट. सो अभी हम टॉपिक को डाइवर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स द कार्डियक एक्टिविटी, कि गर्भा से कार्डियक एक्टिविटी पे कैसे इफेक्ट होता है. प्लीज मैम यू कैन कंटिन्यू. या तो अभी आप कोई भी ट्रेनिंग के लिए या जिम में या वर्कआउट सेशन के लिए जाते हैं, तो आजकल सब फिटबिट पहन के जाते हैं, राइट. और एटलीस्ट आपको पता है आपका हार्ट रेट क्या है. आई वुड रिकमेंड टू एवरीवन, फिटबिट पहनिए, 1 घंटा रनिंग कीजिए, वॉकिंग कीजिए, जो भी एक्टिविटी आप पसंद करते हैं वो लीजिए, और फिर फिटबिट पहन के 1 घंटा गरबा कीजिए. तो द कार्डियक, सबको पता रहेगा कि जो कार्डियक कैपेसिटी है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता है इफ वी चैलेंज द हार्ट फिजिकली अ लिटिल बिट, राइट. तो हर बार हमको धीरे धीरे ग्रेडेड वे में इंडिविजुअल कैपेसिटी के हिसाब से थोड़ा थोड़ा अपने हार्ट को ट्रेन करना है, राइट. तो पहले इफ यू सी व्हाट हैपेंस इन गरबा, ओके, इन गरबा हम क्या करते हैं, 3 महीने तक या 4 महीने तक प्रैक्टिस करते हैं, राइट. दिस इज द नॉर्मल प्रैक्टिस दैट वी हैव. एंड जो स्टार्टिंग होता है, स्टार्टिंग का 1 मंथ होता है, वहां पे स्पीड, इंटेंसिटी, वो सब बहुत लो होता है और वो धीरे धीरे बढ़ता है. स्टेप्स बहुत सिंपल होते हैं, कॉम्प्लिकेटेड नहीं होता. यू विल बी बेटर एबल टू टेल अनीश भाई. बट अगर जहां तक मैंने प्रैक्टिस किया है गरबा, आई हैव नोटिस कि जब हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट मंथ में, तब वो पहले महीने में हम एक एक बीट पे एक एक स्टेप लेते हैं, फिर एक एक बीट पे 2-2 स्टेप, फिर 4, फिर 8. तो वैसे करते करते हमारा स्पीड, रिदम सब कुछ बढ़ता है. जब हमारा स्पीड, रिदम बढ़ता है तब हम हार्ट को ज्यादा चैलेंज कर रहे होते हैं, क्योंकि अब हम इंटेंसिटी ऑफ वर्कआउट बढ़ा रहे हैं हमारा, राइट. जैसे जैसे हार्ट चैलेंज होता जाएगा, वैसे वैसे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब हम ये कंटिन्यू करेंगे, जैसे कि 3 से 4 महीना, तब हमारी कार्डियक कैपेसिटी इंप्रूव हो जाएगी. मेरे पास काफी सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो कहते हैं कि पहले हम 5th फ्लोर पे जब चढ़ के जाते थे तो हाफने लगते थे, बट 3-4 महीने से हम गरबा कर रहे हैं, उसके बाद अभी इतना टायर ही फील नहीं होता, राइट. सो इट इज अ एक्सीलेंट टूल टू इंक्रीज योर कार्डियक कैपेसिटी. ओके, फाइन. अगेन इधर मैं थोड़ा एक प्रिकॉशन दूंगी, दैट आई वुड हाईली रिकमेंड टू डू गरबा इन, अगर आप कार्डियक पे फोकस करके करना चाहते हो तो प्लीज डू गरबा इन फ्रंट ऑफ अ ट्रेन्ड पर्सन, so that he will or he or she will take care of cardiac issues. Otherwise हमने ऐसे भी इंसिडेंट्स देखे हैं कि हार्ट, मतलब गरबा करते करते हार्ट कोलैप्स हो गया. तो ऐसे केसेस ना हो, इसके लिए एक ट्रेन्ड पर्सन से सीखना और एक ट्रेन्ड पर्सन जिसको कार्डियक की नॉलेज हो उसके साथ करना वुड बी अ बेटर थिंग टू. जैसे मैम आप बता रहे हैं कि अभी तो क्या गरबा का ट्रेंड बढ़ रहा है, सभी लोग गरबा की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, नहीं कि गुजरात में पर गुजरात के बाहर भी. और देयर आर मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग हैं जो इतनी सब चीज को ध्यान में रख के गरबा कर रहे हैं. फिर भी अगर उनके पास प्रॉपर ट्रेनर नहीं है एंड दे आर गोइंग टू लर्न गरबा, तो उनको क्या चीज ध्यान में रखनी चाहिए जिससे प्रॉब्लम ना हो इनिशियली, जैसे कुछ आप गाइड कर सको उन लोगों को. I would say for them, follow your body.
you know your body very well. Okay, so जहाँ पे आपकी capacity है, don't try to do over in enthusiasm. Okay, you understand, जब भी आप नया start कर रहे हो कोई भी workout, ये this is applicable to any workout, not just गरबा. Okay, जब भी आप कुछ नया start कर रहे हो तो अपना pace identify करो और अपने pace पे धीरे धीरे उसकी capacity बढ़ाना try करो. फॉर एग्जाम्पल आज आपको पता चल रहा है कि 30 मिनट गरबा खेलने से, सपोज एक स्पीड पे अगर आप 30 मिनट गरबा खेल रहे हो तो उससे आपको थकान लग रही है, हार्ट रेट आपका बढ़ रहा है, सांस फूल रही है. तो मैं नॉर्मली मेरे पेशेंट्स को, सबको, पेशेंट्स को नहीं, जो हेल्दी इंडिविजुअल्स भी है उनको भी हार्ट रेट चेक करना सिखाती. ठीक है, और उनको हम एक लिमिट देते हैं कि यू आइडेंटिफाई अ लिमिट. आप जितना भी आज हार्ट रेट बढ़ रहा है उससे सिर्फ 20 या 10 इंक्रीज करने का ट्राई करो. अगर आपका ब्रेथ रेट 30 से ऊपर हो रहा है, मतलब 30 से ऊपर हो रहा है, हाँ जी, आपका ब्रेथ रेट, ओके, दैट मीन्स यू हैव टू लोअर डाउन योर एक्टिविटी अ लिटिल बिट. स्लोली ट्राई टू इंक्रीज योर एक्टिविटी रादर देन एक ही दिन में फुल एंथुजियाज्म में सब कुछ कर देना. So go with your body, identify your own limitations, and then slowly increase it day by day. और मे बी वीक बाय वीक. उसमें मैम क्या होता है कि जब हम गरबा खेलने जाते हैं तो हर एक लोगों की एनर्जी का लेवल अलग अलग होता है, राइट. अगर हम जब गरबा खेलते हैं, हमारे साथ और 25-50 लोग खेलते हैं, अगर किसी ने थोड़ा बहुत मोड़ दिया, थोड़ा बहुत अच्छा खेल लिया, तो वी आर ट्राइंग कि भाई हम भी ऐसा कर सके. और विदाउट एनी प्रॉपर ट्रेनिंग वी आर ट्राइंग टू डू दैट कि भाई हाथ को ऊपर लिया, कमर में से मोड़ गए, ये करने की ट्राई की, ये करने की ट्राई की. So maybe that effect जो हमको इंजरीज के कॉजेज वो दे सकता है मैम. फाइन. और जैसे आपने हमको बताया कि वी हैव टू अपने बॉडी को जज करना है, लाइक कि उसकी कैपेसिटी कितना है. वी हैव टू बी इन अ कंफर्टेबल जोन के जब एक ऐसा समय आए कि भाई अब हमारी कैपेसिटी नहीं है तो वी हैव टू स्टॉप एंड वी कैन, जो नेक्स्ट डे वी कैन इम्प्रूव दैट थिंग, राइट. Exactly. Okay, fine. And always remember good warm up and good cool down. Okay. That we are doing in my class. As we have decided the protocol. जब हमने बात की थी और हमने जो decide किया था, from that day I am doing that thing कि भाई मैं उनको warm up, cool down, stretching जो सब करवाता हूँ. I don't know about the other class, but जो हमको मालूम है हम उसको follow करने की try करते हैं. That's fantastic. So let's go to the next topic, ma'am. So body को फ्लेक्सिबल बनाने में गरबा कितना मदद कर सकता है? हाउ द गरबा कैन हेल्प टू मेक आवर बॉडी मोर फ्लेक्सिबल? यस, तो इफ यू सी गरबा, तो हमारी जितनी भी मूवमेंट्स है वो लार्ज एम्पलीट्यूड मूवमेंट्स है. मतलब छोटे छोटे हाथ की मूवमेंट्स नहीं है, बड़ी बड़ी मूवमेंट्स है. लाइक हमारा हाथ यहाँ से लेके एंड तक जाता है, तो एंड रेंज तक हम लेके जाते हैं सारे जॉइंट्स को. जब हम एक्सरसाइज भी करते हैं, जब हम फिजियोथेरेपी रिलेटेड भी एक्सरसाइज करते हैं, तो रेंज जो जॉइंट का रेंज रहता है, विच इज अ मेजर कंसर्न फॉर मेनी पीपल. ओके, सो व्हेन यू डू गरबा, जब हम गरबा करते हैं तब हम उसको फुल रेंज में लेके जाते हैं, अलग अलग और सारे, इट्स अ कंबाइंड मूवमेंट. ये एक पर्टिकुलर मूवमेंट नहीं है. ऐसा नहीं है कि हम स्ट्रेट हाथ उठा रहे और रख रहे. इट्स अ कंबाइंड मूवमेंट, इट्स अ 3 डायमेंशनल मूवमेंट. तो जॉइंट का मोबिलिटी ये 3 डायमेंशनल मूवमेंट से और एंड रेंज तक लेके जाने से वो बढ़ता है. तो गरबा में सारी ऐसी मूवमेंट्स हैं जिसमें फुल रेंज मूवमेंट्स होती है. इनफैक्ट गरबा इज वेरी गुड फॉर इम्प्रूविंग योर ट्रंक मोबिलिटी. मतलब अगर आपका ट्रंक का पार्ट, बैक चेस्ट का ट्रंक का पार्ट, अगर आपका रोटेशन, अगर साइड बेंडिंग अगर आपके वीक हो, तो उसको रेंज को इम्प्रूव करने के लिए इनफैक्ट गरबा हैज फैंटास्टिक. ओके, फाइन. सो जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ पे ट्विस्टिंग्स होते हैं गरबा को लेके, बेंडिंग्स होते हैं. फ्रॉम दैट वी कैन इम्प्रूव आवर फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ द बॉडी. और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो इम्प्रूव होती है मैम, तो आपके हिसाब से वो हमको रेगुलर लाइफ में कहाँ पे काम लगती है? हाउ इट कैन बी हेल्पफुल इन अवर रेगुलर लाइफ? इट इज वेरी सिंपल. जहाँ पे भी आपका रेंज लिमिट होता है, काफी बार हम लोग को आइडिया ही नहीं होता. आप कितने सारे लोगों को देखेंगे जो मेनली कंप्यूटर
स्क्रीन पे वर्क कर रहे हैं सपोज, ओके, हाँ जी। उनका क्या होता है, उनका ओवरहेड रेंज जो है ना वो अपने आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कम हो जाता है, क्योंकि उनकी Okay. डे टू डे एक्टिविटीज में वो इतना तक रेंज लेके ही नहीं जा रहे। सही बात ओके, है। तो हाँ। व्हाट हैपेंस, देयर इज अ लिमिटेशन इन रेंज। फिर सडनली जब कोई एक्टिविटी ऐसी आई कि ऊपर करके लेना पड़ा तो वो रिस्ट्रिक्ट हो जाती है रेंज। हाँ जी, ओके, हाँ जी, अनदर थिंग इज कि डायरेक्ट इम्प्लीकेशन ऐसे डिजीजेस पे नहीं है इसका, लेकिन इफ यू मेंटेन योर मोबिलिटी वेल, जॉइंट मोबिलिटी वेल, तो जॉइंट का हेल्थ अच्छे से मेंटेन होता है, तो जॉइंट पेन होने का चांसेस रिड्यूस। ओके, ओके। एंड मैम, व्हाट अबाउट द स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस? गरबा खेलने से हमारे बॉडी के स्ट्रेंथ पे और उसके एंड्योरेंस पे क्या इफेक्ट पड़ता है? ओके, सो जब हम एक मसल को देखते हैं तो उसका दो तरीके का कैपेसिटी है। फर्स्ट है, इट इज द एबिलिटी टू लिफ्ट द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ लोड। ओके, इज यू डिफाइन इट एज स्ट्रेंथ, कि कितना ज्यादा लोड एक मसल उठा सकता है। उठा सकता ओके, है। हाँ, दूसरा एबिलिटी है कि लोड चाहे जो भी हो लेकिन कितना टाइम तक वो सस्टेन कर सकता है, जिसको हाँ जी। हम एंड्योरेंस बोलते हैं। हाँ जी, राइट, हाँ जी, so there are two things, one is strength, the other thing is endurance. एंड्योरेंस। गरबा से मसल स्ट्रेंथ में ज्यादा डिफरेंस नहीं पड़ता है, इट इज अ लिमिटेड इम्प्रूवमेंट। हाँ, लेकिन Okay. अगर आप सेडेंट्री हो, ठीक है, आप कंप्लीटली सेडेंट्री हो, आप कोई एक्टिविटी नहीं करते हो, पर जब आप गरबा करना स्टार्ट कर देते हो तो आपका लोअर लिम्ब का मतलब पैरों का स्ट्रेंथ इंक्रीज होता है, इवन हाथों का भी इंक्रीज होता है, बट पैरों का ज्यादा होता है। ज्यादा होता है। लेकिन एंड्योरेंस में बहुत बड़ा इम्प्रूवमेंट होता है उससे, क्योंकि हम एक ही लोड पे एक सस्टेन्ड एक्टिविटी फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम कर रहे हैं, तो इसकी वजह से मसल एंड्योरेंस में बहुत इम्प्रूवमेंट आता है। ओके, तो बेसिकली कोई भी चीज को कंटिन्यू रखने का स्टैमिना ओके। विथ रिस्पेक्ट टू मसल। सो व्यूअर्स, जैसे हमने देखा कि हमको गरबा फैट लॉस से लेके कार्डियाक से लेके फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस पे कितना इफेक्ट करता है, वो मैम ने हमको बहुत डिटेल में समझाया। सो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट, सो वी कैन गिव यू आंसर। जो हमारे साथ मैम जुड़े हुए हैं वो शी इज इनटू रिसर्च विद अस, जो हमारे साथ रिसर्च कर रहे हैं, शी इज डीप इनटू इट। उनको गरबा तो बहुत अच्छा आता है। हाँ, सूरत में जब रहते थे तो साथ में बेसिकली वो मेरे स्टूडेंट्स रहे हुए हैं डांस के अंदर, बट आई हैव लर्न फ्रॉम यू। फिर भी जो गरबा को लेके उन्होंने मुझे जो नॉलेज दिया, मुझे जो इसके लिए इंस्पायर किया, दैट इज द बेस्ट थिंग। क्योंकि आज मैं अगर गरबा को इतना दूर ले जा सका हूँ तो जस्ट ड्यू टू यू, आपकी वजह से ही मैं गरबा को यहाँ तक लेके आया हूँ। सो वी हैव सो मेनी गोल्स। हम लोग बहुत कुछ करने वाले हैं इसको लेके। सो अगर किसी का क्वेश्चन आता है तो तब उनका आंसर करेंगे। तब तक लेट्स गो अहेड विथ आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। So ma'am, what do you think? गरबा can improve body balancing or not? क्या बैलेंस बॉडी का जो है वो इम्प्रूव होता है गरबा को लेके? ओके, सो हमने एक रिसर्च किया था जैसे कि अनीश भाई ने बताया, एंड वो रिसर्च में हम लोग ने पाया है कि बैलेंस डज इम्प्रूव विद गरबा। अभी वो एक लिमिट है उसका, कहाँ तक इम्प्रूवमेंट हो सकता है, वो स्टिल वी आर डूइंग सम अदर रिसर्च इन द सेम फील्ड। लेकिन जब हम गरबा खेलते हैं तब हम फोकस करके खेलते हैं, राइट? हमारा फोकस और अटेंशन एकदम हाई रहता है। ओके, तो जब हम गरबा बोलेंगे तो इट इज ऑल्सो अ कॉग्निटिव प्रोसेस। कॉग्निटिव प्रोसेस मतलब क्या, कि कोई ऐसी प्रोसेस जिसमें आपके ब्रेन को इन्वॉल्व होना पड़े, उसको प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़े, ठीक है, वो स्टेप्स को हमको याद रखना पड़ता है, वो स्टेप के हिसाब से मूव होना पड़ता है। तो जो नए लोग होते हैं जो अभी अभी गरबा सीख रहे हैं, वो उसको बहुत अटेंशन के साथ और बहुत फोकस के साथ करते हैं, तो उनमें फोकस और अटेंशन इम्प्रूव होने की वजह से बैलेंस इम्प्रूव हुआ गया, पाया गया है हमारी खुद की रिसर्च में। लेकिन जैसे जैसे ये प्रैक्टिस बढ़ती जाती है, तो अगर वो स्टेप्स सेम हुए तो वो एक आदत सी हो जाती है, इट गोज टू अ स्टेज वेयर इट इज ऑटोमेटिक। तो फिर ज्यादा कॉग्निशन रिक्वायर्ड नहीं रहता उसमें, और तब वो इतना इम्प्रूव बैलेंस को शायद नहीं करेगा। आई एम एज्यूमिंग, स्टिल वी आर वर्किंग ऑन इट, वी आर कमिंग अप विद वेरियस रिसर्च। ओके,
But yes, this is also very very important in sports. If I would say कि कोई एक पर्टिकुलर स्पोर्ट ले लीजिए आप, हाँ जिसमें जी। से फुटबॉल और बैडमिंटन, इफ अ प्लेयर इज एक्चुअली प्लेइंग गरबा अदरवाइज ऑल्सो इन हिज लीजर टाइम, तो उससे वो अपनी कार्डियक कैपेसिटी इंप्रूव कर सकता है, मसल एंड्योरेंस इंप्रूव कर सकता है, अटेंशन Okay. और फोकस भी इंप्रूव कर सकता है. तो इट कैन एक्चुअली वर्क वेरी वेल. अगर हम कोई स्पोर्ट्स पर्सन को हम कोई एक वर्कआउट सेशन के इसमें हम ऐड करें, प्लस हाँ वी जी। विल कम टू अदर थिंग्स ऑन इट. जैसे कुछ हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं. आई टेल यू व्हेन वी डिस्कस इट इन डीपर दिस थिंग, देयर आर सर्टेन हॉर्मोन्स व्हिच आर रिलीज when we do garba, because they are happy hormones, right? Enkephalins, Yeah. endorphins, serotonin जैसे there are chances of releasing these kind of hormones. तभी if you have noticed few people जो बहुत involve हो जाते हैं गरबा खेलते खेलते, especially when they play with deep involvement, उनके आँख से पानी आ जाता है, because हाँ जी। it is so much of happy hormones are getting released कि उनको it takes them to another level of ecstasy, I would Okay. say. तो उससे पेन जो है वो टेम्पररीली रिड्यूस हो जाता है. कभी आपने नोटिस किया है कि अगर गरबा खेलते खेलते थोड़ा पैर ट्विस्ट हो गया या नी में पेन हो गया, पर हम लोग जब तक वो बीट बजना बंद नहीं होता तब तक हम खेलते रहते हैं. मोटिवेशन है एक पार्ट में, लेकिन इफ यू हैव नोटिस काफी लोगों को, आई हैव मेट पीपल जिनको एंकल स्प्रेन्स हो गए रहते हैं, लिगामेंट इंजरी हो गई रहती है ड्यूरिंग गरबा, ओके, लेकिन वो राउंड खत्म होने तक खेलते रहते हैं और तब तक उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होता. जैसे ही वो जाके बैठते हैं और थोड़ा रिलैक्स होते हैं और दूसरे दिन सुबह उनका स्वेलिंग चालू हो जाता है, पूरा बॉडी मतलब लेग स्वेल हो जाता है, पेन स्टार्ट हो जाता है. So that is because temporarily ऐसे hormones which are natural painkillers might be getting released from the brain, which control this thing, which is also very true in a sport. जैसे आप ये खेलते हो, फुटबॉल खेलते हो, अगर फुटबॉल प्लेयर देखो पैर टूट जाने के बाद भी उतना ही मतलब ये करता है, आराम से खेल लेता है. So that goes for the sports same. So we have one question over here. जैसे बेसिक तो आपने बता दिया, फिर भी if you can answer to the particular guy. So, but if you play garba for a longer time, your leg starts paining. What is the remedy for that? उसके लिए क्या करना चाहिए कि भाई? So I think you can answer this question better than me, but then you are already doing all those things. But yeah, still I will answer you to this कि या तो leg pain तभी होता है अगर आप टू मच इंक्रीज करते हो आपकी कैपेसिटी को. लाइक येस्टरडे योर कैपेसिटी, हम क्या डिसाइड करते हैं, कल तक हम सिर्फ घर में बैठे थे, काम करते थे, थोड़ा बहुत घर का काम या ऑफिस का काम, एंड सडनली एक दिन गरबा खेलना है, जाके हमने 60 मिनट्स गरबा खेल लिया. तो ऑब्वियसली व्हेन यू स्टार्ट इट सडनली, तो थोड़े दिनों के लिए पेन होना पॉसिबल है. सेकेंडली अगर हम इसको धीरे धीरे अपना कैपेसिटी इंक्रीज करें तो इस पेन को कंट्रोल किया जा सकता है. ये पेन नहीं हो सकता आगे जाके. और a good warm up and a good cool down, as I mentioned. That is the main thing. That is the main thing. Because जैसे मैं आपको बताना चाहूंगा मैम के सूरत के अंदर नहीं कहीं पर भी no one is doing warm up and cool down or stretching something like that. जो हम लोगों ने प्लानिंग किया था, जो हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, बट many of my students are paining very relief. अगर वो घर से क्लास से बाहर जाते हैं तो दे आर being very easy, क्योंकि उन्होंने कंप्लीट बॉडी का कूल डाउन भी कर लिया, उसका स्ट्रेचिंग भी कर लिया, तो उनके मसल्स भी रिलैक्स हो गए. और कई बार हमारे यहाँ पे ऐसा बोलते हैं कि भाई गर्म पानी में नमक डाल के पैर डाल दो तो थोड़ा बहुत पेन रिलीज हो जाएगा. That is the normal basic चीजें जो रहती है. आप हॉट वाटर फर्मेंटेशन करो, या अगर आपको थकान लग रही है मसल्स में, जैसे स्वेलिंग जैसे लग रहा है, तो आइसिंग कर सकते हैं, उसको थोड़ा रेस्ट दे सकते हैं, थोड़ा उसको अगर कोई पर्टिकुलर जॉइंट में पेन है तो वो जॉइंट को इमोबिलाइज करके रख सकते हैं. लेकिन मेन थिंग इज कि हमको वो पेन आने ही नहीं देना है. लेट्स टॉक अबाउट प्रिवेंटिंग द पेन रादर देन रेमेडीज ऑफ पेन. Okay. So that is one thing. And for the viewers, those who don't know, I mean, sorry Anish bhai, I'm saying this, but Anish bhai has designed a fantastic warm up and cool down of his own.
ऐसा नहीं है कि वो कोई और मतलब जगह से नॉर्मल जो हमारी एक्सरसाइजेस होती है वार्म अप एंड कूल डाउन की, वो स्ट्रेचिंग नहीं करते, वो कुछ इन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली उसको बनाया है, तो कांग्रेट्स टू यू ऑन दैट। बनाया है, पर आपने उसको सिर्फ वेरीफाई किया कि अनीश भाई ये बराबर ये करते हैं जो मतलब सिर्फ बनाया है, दैट वाज गुड। बट फिर भी हेमल भाई, होप आपको आपका आंसर मिल गया होगा। स्टिल मैं आपको एक बात बताऊंगा कि अगर आप गरबा करने से पहले वार्म अप और स्ट्रेचिंग करेंगे, करने के बाद कूल डाउन स्ट्रेचिंग करेंगे, तो मोस्टली आपका 80-90% जो पेन है वो रिलीज हो जाएगा। 10% इज नॉर्मल, क्योंकि भाई गरबा खेला है तो लगना भी चाहिए कि गरबा खेल के आए हैं, तो पेन शुड बी देयर। क्योंकि हम लोग को जब गरबा खेलते थे पहले, जब इतना नॉलेज नहीं था, तो वी वर लाइक कि जब तक चक्कर आके गिर नहीं रहे तब तक गरबा खेलते हैं। दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी। आपको बहुत मजा आता है वो चीज करने में। देयर आर सो मेनी पीपल आर देयर इन सूरत कि भाई उन लोगों को इतना क्रेज है गरबा को लेके। पर जैसे मैं आपको एक बात मैं पूछ रहा हूँ कि आज के दिन में क्या होता है कि नए नए स्टेप्स बनते हैं, नए नए जो सर लोग होते हैं उनकी खुद की कैपेसिटी के हिसाब से नए स्टेप्स बनाते हैं, एंड और वो लोग स्टूडेंट्स पे अप्लाई करते हैं कि भाई आप ये स्टेप करो। अभी जो स्टेप बनाने वाला बंदा है ही इज मे बी 50-55 kg, और जो करने वाला बंदा है वो 60-67-70 kg जो होता है। सो ड्यू टू दैट उनकी जो ये सब जो करवाते हैं सर, उनसे होता है शायद किसी को इंजरीज आती है, लिगामेंट्स में भी प्रॉब्लम्स आते हैं कई सारे। जो हमारा एक सर्वे यहाँ पे सूरत में बोलता है कि ड्यूरिंग द नवरात्रि टाइम एक अगर अच्छा ऑर्थोपेडिक डॉक्टर है तो ही इज डूइंग 15-20 लिगामेंट ऑपरेशन। सो व्हाट शुड बी टेकन केयर, उस अगर वो चीज से हमको बचना है तो हमको क्या करना चाहिए? इसमें 3-4 चीजें हैं अनीश सर। वन इज दैट ट्रेडिशनली हमारे जो मतलब फ्लोरिंग गरबा का, दैट इज वन थिंग विच इज एक्सटर्नल फैक्टर्स हम पहले देखते हैं, फिर इंटरनल फैक्टर्स पे जाएंगे। फ्लोरिंग हो गया, टेक्निक हो गया, लैंडिंग कैसा है वो हो गया, व्हाट काइंड ऑफ, अभी गरबा तो हम बेयरफुट ही करते हैं, so there is no question of footwear in that, लेकिन there are certain people जिनको मैंने देखा है जो चप्पल पहन के गरबा करते हैं ताकि वो धूल ना लग जाए, तो that's a disaster, okay, that's actually a disaster. Another thing is अगर हम internal factors की बात करें तो I would say two things again. एक तो identify your own capacities, आइडेंटिफाई कि क्या करने से आपको पेन हो सकता है, क्या कर आपका लिमिट क्या है वो आइडेंटिफाई करो और उसको धीरे धीरे इंक्रीज करने का ट्राई। अनदर थिंग आई वुड से इज करेक्ट टेक्निक। आप कौन से टेक्निक से, जब गरबा में हम पैर डालते हैं जमीन पे तो बहुत ज्यादा फोर्स से डालते हैं और उतना ही फोर्स जमीन हम पे डालती है, विच इज कॉल्ड ग्राउंड रिएक्शन फोर्स, राइट। तो ये ग्राउंड रिएक्शन फोर्स कितना अच्छे से आपके बॉडी में एब्जॉर्ब होगा वो डिपेंड करता है दो चीजों पे, आपके मसल स्ट्रेंथ और आजू बाजू की जॉइंट की स्ट्रेंथ क्या है वो, और आप कितना इजीली आप लैंड करते हो उस पे ये कलर। सो अप्रोप्रिएट टेक्निक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, रही बात नए नए स्टेप्स की, तो आई वुड से मुझे मेरे जो लेक्चरर है वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेसर, उन्होंने एक चीज बोला था, बिकॉज इवन सी वी आर गेटिंग इनोवेटिव एंड वी आर ऑल्सो कमिंग अप विद न्यू एक्सरसाइजेस, राइट। तो उन्होंने एक ही चीज बोला था कि बेटा जब भी यू कम आउट विद वन एक्सरसाइज आप उसको मिनिमम 100 टाइम्स करो, ओके, एंड देन यू सी व्हाट आर द चेंजेस हैपनिंग विद इन योरसेल्फ, okay, and then decide whether you want to give it to somebody else. Okay, so this is the simplest thing. Even जो भी proven protocols या exercises के जो fantastic exercises है जो हमेशा लोग कर रहे हैं, उनको भी हम पहले खुद अपने आप पे करके चेक करते हैं, एक बार वेरीफाई करते हैं अगर वो पॉसिबल है। और आई वुड से सिर्फ खुद पे ही नहीं, खुद पे तो इट्स जस्ट एन एग्जांपल क्योंकि वी आर इजीली अवेलेबल, बट जस्ट ट्राई विद फ्यू अदर पीपल कि अगर मैं 50 kg का बंदा कर सकता हूँ तो या 80 का कर पाएगा, क्या 100 का कर पाएगा, उसके लिए क्या मॉडिफिकेशन जरूरी है, एंड देन यू कैन टेक इट अहेड। मतलब आपके हिसाब से जब भी कोई नया स्टेप सीखने की कोशिश करते हैं तो वी हैव टू डू दैट पर्टिकुलर स्टेप्स फॉर द मैक्सिमम टाइम एंड वी हैव टू फील द इफेक्ट ऑन आवर बॉडी।
Yes, this is I would say just a common sense, right? अगर हम किसी को कुछ दे रहे हैं तो पहले उससे क्या इफेक्ट आ रहा है वो हमको तो पता होना चाहिए, right? And the best way to know this is to practice ourselves. उसमें क्या है, बाहर के लोग क्या देखते हैं ना, उस पे इफेक्ट ज्यादा आता है, खुद के ऊपर ऐसे क्या होता है कोई दिखता नहीं है। भाई मैं अगर ऐसा घूमूंगा तो वो मुझे अच्छी तरह से देखेंगे और मेरे फ्रेंड्स बनेंगे, मेरे फॉलोअर्स बनेंगे। दैट इज द बेसिक रीजन बिहाइंड दैट। उन लोगों का एक नजरिया Okay. वो भी होता है। I would, yes, that is there. गरबा is becoming a competitive sport, तो लोगों के मन में वो है. But I will come to it when we discuss emotional and mental and psychological health. We will come to it. That's fine, that's fine. So viewers, if you want ask any questions, अगर आपको कुछ पूछना है तो you can write down in the comment again. And we are continuing our session. So next topic will be on that point only कि how it affect on emotional and like social, जो गरबा जो है उसका इमोशन लेवल, साइकोलॉजिकल लेवल पे उनको फिटनेस के पर्पस से क्या इफेक्ट करता है उनको, हाउ इट मेक अ फिट आवर मेंटल हेल्थ। प्लीज Okay. इफ यू कैन एक्सप्लेन। तो जैसे कि मैंने पहले बताया, कोई भी अगर एरोबिक एक्टिविटी हम करते हैं तो एक हमारे ब्रेन में वेरियस ग्लैंड्स होते हैं। अगर हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं या हमने कभी साइंस में पढ़ा होगा, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है एक, ओके, एक एड्रिनलिन ग्लैंड होता है। वो अलग अलग केमिकल्स और हार्मोन्स प्रोड्यूस करते हैं बॉडी में, जिसके अलग अलग फंक्शन रहते हैं। So there is one link between something called pituitary gland, adrenal gland and hypothalamus. Hypothalamus एक ब्रेन का पार्ट है, ओके। तो ये तीन चीजों की एक लिंक रहती है जिसको हम हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनालिन एक्सिस बोलते हैं मेडिकल साइंस में, ओके। तो जब भी हम कोई भी एरोबिक एक्टिविटी करते हैं, इट हैज बीन प्रूवन इन रिसर्चेस कि वो एरोबिक एक्टिविटी से ये एक्टिवेट होती है हाइपोथैलेमो पिट्यूटरी एड्रिनालिन एक्सिस, और वो रिलीज करती है सर्टेन हॉर्मोन्स लाइक सेरोटोनिन एंड मेनी अदर हॉर्मोन्स टू, डिपेंडिंग ऑन व्हाट एक्टिविटी यू आर डूइंग, उसके हिसाब से हॉर्मोन्स भी अलग अलग होते हैं। एनकेफेलिन्स रहते हैं, एंडोर्फिन्स रहते हैं, सेरोटोनिन रहते हैं, अलग अलग टाइप के हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं हर एक अलग अलग एक्टिविटी में। तो गरबा भी एक एरोबिक एक्टिविटी है, तो उससे डेफिनेटली हमारे अंदर ब्रेन में ऐसी केमिकल्स रिलीज होते रहेंगे जिसको हम हैप्पी हार्मोन्स बोलेंगे। Although there is no proven researches on, nobody has actually checked the levels, blood levels, but we are coming up in future with a similar kind of research. So we feel, we are hypothesizing कि ऐसा क्योंकि वो भी एक एरोबिक एक्टिविटी है तो उससे हैप्पी हॉर्मोन्स रिलीज होंगे। प्लस अगर मैं थोड़ा सा, इफ आई कैन मिक्स a little bit of spiritual science with that, I know you will be better able to tell me on that, but थोड़ा spiritual science अगर हम लगाएंगे, योगिक साइंस लगाएंगे इसमें, तो जब हम गरबा करते हैं तो हमारा अनाहत चक्र जो होता है वो एक्टिवेट होता है, राइट। अनाहत इज फॉर इमोशंस, फॉर फीलिंग्स। जब हम क्यों हम एकदम उदास होते हैं और कोई इंसान अगर कोई मिल जाए या किसी फ्रेंड के साथ बात कर ले या कोई एक्टिविटी कर ले जिसमें हमको इंटरेस्ट है, तो सडनली हमारा मूड चेंज हो जाता है। वैसे ही अगर आप गरबा करेंगे, इफ यू आर जस्ट फीलिंग डाउन, दिस इज नॉट जस्ट फॉर गरबा, फॉर एनी डांस फॉर्म, ओके। अगर थोड़ा मूड लो है तो अगर बॉलीवुड के 3-4 गाने बजा के डांस किया तो पूरा मूड चेंज हो जाता है, राइट। सेम वे अगर आप थोड़े लो हो और हमने ये किया, गरबा किया, तो वो अलग ही मतलब मूड हो जाता है, बिकॉज दीज हॉर्मोन्स आर रिलीज इन योर बॉडी विच आर मेंट फॉर प्लेजेंटनेस, विच आर मेंट फॉर, we just call them happy hormones in common language. Okay. So that's the psychological effect. So I would highly recommend कि लॉकडाउन में एटलीस्ट आप घर पे हाफ एन आवर के लिए गरबा करो। You will definitely see your moods will be different and you will be more at peace with your spouse. जैसे मैम आपको मालूम है कि हम लोगों ने जो योग गरबा जो डिजाइन किया हुआ है, we have some students over here before lockdown कि वो मेरे साथ जुड़े हुए थे। So, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ तो हमने ऑनलाइन वो योग गरबा स्टार्ट किया। हम लोग सुबह में करते हैं 7 to 8,
बट मेरे लिए अच्छी बात है कि भाई जो लोग कर रहे हैं, जिनको इनका पूरे डिश खाने की हैबिट हो गई है, उनको मालूम है योग गरबा इज व्हाट, तो वो लोग सुबह में उठ के 7 बजे उठ जाते हैं, सेशन ज्वाइन करते हैं, एंड वी आर डूइंग टिल 8 o'clock। तो मैंने पूछा था उन लोगों को भाई कि आपको क्या क्या फील होता है, आपको हेल्प करता है कि नहीं करता, तो सम मैनी ऑफ देम सेड कि हमको एनर्जी मिलती है, हमको स्ट्रेंथ मिलती है, पूरा दिन फ्रेश जाता है, तो सो बहुत सारे बेनिफिट वी आर गेटिंग फ्रॉम दैट। सो मैम एक एक क्वेश्चन था, जैसे स्पेशली रनर्स के लिए, कि मैं एक रनर हूँ, मैं रनिंग करता हूँ, और मैंने कई बार फील किया है कि भाई गरबा के साथ अगर मैं उसको कनेक्ट करता हूँ तो इट हेल्प्स मी लॉट। पर अभी आई डोंट नो कि भाई वो सिर्फ मेरे पे हेल्प करेगा, दूसरे को भी हेल्प करेगा। सो इफ यू कैन एक्सप्लेन, क्योंकि अभी मैराथन का ट्रेंड चल रहा है, कई सिटीज में मैराथन चल रहा है भाई, जब किसी को भी बोले क्या भाई मैराथन दौड़ने निकले, दौड़ने हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं, सो हाउ Yes. इट कैन बी हेल्पफुल, गरबा कैसे इनको इनमें हेल्प कर सकता है हमको? Okay. Yes, definitely. This is like what we covered in physical में हमने जो covered किया physical fitness में, जब भी आप गरबा करते हो तो आपका capacity endurance बढ़ता है, जैसे cardiac endurance बढ़ता है, muscle endurance बढ़ता है, तो आपका running का capacity भी improve होता है। See, there is something called specific training and carry over training। स्पेसिफिक ट्रेनिंग मतलब अगर आप गरबा कर रहे हो तो आपका गरबा का कैपेसिटी इंप्रूव होगा, लेकिन कैरी ओवर ट्रेनिंग इज कि अगर आप एक पर्टिकुलर चीज कर रहे हो तो उसमें अलग कोई दूसरा स्पोर्ट अगर सिमिलर आपने लिया जिसमें सेम काइंड ऑफ स्पेसिफिकेशंस का जरूरत रहता है, सेम काइंड ऑफ ऑक्सीजन लेवल्स का जरूरत होता है, तो वो भी इम्प्रूव होता है। सो दैट इज क्रॉस ओवर इफेक्ट, इट्स अ क्रॉस ओवर इफेक्ट ऑफ ट्रेनिंग। तो डेफिनेटली जब आप करोगे गरबा के, मतलब अगर आप रनिंग कर रहे हो, आपको अपने आप पता चलेगा दैट देयर इज अ ह्यूज डिफरेंस व्हेन यू स्टार्ट डूइंग गरबा एंड देन डूइंग रन। या सो मैम वन मोर थिंग कि हमारा जो गरबा है, जो हम लोग शेरी गरबा पहले करते थे, अभी भी कई कई लोग कर रहे हैं, सो देयर इज अ क्लैप इन गरबा के पे हमको कंटिन्यूस क्लैपिंग्स करने होते हैं, अलग अलग एंगल्स पे बॉडी को मूव करके, ट्विस्ट करके, आगे पीछे ऊपर नीचे। So if you can explain how clap will helpful to the people when they are into Garba. Yeah. So I think Anish, I couldn't hear your last thing, but I understood what you are trying to say. The importance of clap. During the physical activity during the गरबा, because जब दुनिया के अलग अलग डांस फॉर्म हमारे सामने आते हैं तो गरबा एक तरीके से अलग पड़ता है, तो व्हाट दैट इज क्लैप, कि हमको कंटिन्यूस क्लैपिंग्स करनी होती है। हमारे घर के पास जो दादा दादी भी गरबा खेलते हैं या कोई भी खेलता है, तो दे आर डूइंग बेसिक 2 ताली 3 ताली गरबा, और वो कंटिन्यूस 1 घंटे 2 घंटे तक क्लैपिंग्स करते रहते हैं। वी डोंट नो हाउ दे आर गेटिंग एनर्जी ड्यूरिंग दैट टाइम, क्योंकि नवरात्रि के टाइम पे जो पूरे साल आपको बाहर नहीं दिखते होंगे, वो लोग भी गरबा खेलने के लिए दैट टाइम आएंगे। So just wanted to ask you कि clap, how clap can helpful to the people during the गरबा activity? See, अभी इसका कोई what I am going to say उसका कोई scientific ये नहीं है, कोई researches नहीं हुए उसमें, कोई scientific evidence नहीं है, but if we understand basic हमारे गरबा की movements को हम अगर disintegrate करें, okay, and if we understand what was the, you know, I'm not answering this as a physiotherapist or as a doctor at all. Yeah, this is like a common man's analysis. Yeah, got it. So if you go deeper into the movements of garba, हमारे country में garba is, I would like to link it a little spiritually. Okay, हमारे country में garba को as a spiritual tool देखा गया है। ओके, जहाँ पे लोग एक स्पिरिचुअल स्टेट में जाने के लिए गरबा, जो हम ट्रांस बोलते हैं नॉर्मली हमारे स्कूल कल्चर में, वो ट्रांस तक जाने के लिए हम गरबा को एज अ टूल यूज करते थे ट्रेडिशनली, राइट? तो जब हम स्पिरिचुअल चीजें करते हैं तो उसमें मूवमेंट का और साउंड का मतलब एक अलग ही इम्पोर्टेंस है। इफ यू सी, जो क्रिया भी हम लोग मेडिटेशन वगैरह भी की क्रिया भी जो रहती है, उसमें ओम चैंटिंग रहता है या कोई भी टाइप का चैंटिंग रहता है या साउंड प्रोड्यूस करना रहता है। तो आई एम नॉट श्योर, बट ये जो स्टेप जो डेवलप हुए हैं ट्रेडिशनली, मेरे ख्याल से वो भी इसी के लिए डेवलप हुए हैं ताकि इसको हम एक
धीरे धीरे करके वो ऐसी स्ट्रक्चर्ड उसका एक वे है जो हमको टूवर्ड्स दैट एंटरटेनमेंट ले सके. आई एम श्योर आप इस पे ज्यादा स्पिरिचुअल हेल्थ पे आप ज्यादा बात कर पाएंगे. You are a better person to talk about it. But as far as I understand spiritual health and if I analyze the Garba steps that way, if you see जो movements भी है वो भी कहीं ना कहीं ऐसी है जहाँ पे you take your body to one level after which you can attain that height ऐसा of. होता है मैम. या जैसे आपने बताया स्पिरिचुअल लेवल पे या रिलीजियस लेवल पे अगर ले जाते हैं हम गरबा को, तो जैसे गरबा के जो शब्द है, द वर्ड्स फॉर गरबा, गरबा के जो शब्द है वो स्पिरिचुअल तो होते हैं, रिलीजियस तो होते हैं, पर बेसिकली उसके अंदर हमारे बॉडी के जो एलिमेंट्स है, 5 एलिमेंट्स, उनके साथ कनेक्शन वाले वर्ड्स यूज किए जाते हैं जो हमारे अंदर जाते हैं. अनदर थिंग इज द म्यूजिक. के गरबा का म्यूजिक इज कूल एंड काम. इट्स नॉट दैट मच एग्रेसिव कि भाई हु हा कर दिया और हमको एग्रेसिव बना दिया. वो कूल एंड काम है तो हमको वो भी कामनेस भी मिलती है. एंड वी आर गेटिंग कनेक्टेड विद पॉजिटिव एनर्जी वी कैन से कि भाई जब गरबा होता है तो बीच में जो मटका रखते हैं या स्पिरिचुअल माता जी की मूर्ति रखते हैं, तो इट गिव्स अस द एनर्जी एंड ऑल द थिंग्स. So we have one question from one of our. Before we take that question, Anish, I would just like to correct you a little bit on this. Yes, sure. What is my perception for this is that Garba was never religious. Okay, उसको religious बनाया गया है out of this thing. Okay. अगर हम उसके songs भी सुनेंगे, अगर हम ये भी करेंगे, तो it is always there are two universe में दो तरह की energies रहती है, feminine and masculine, right? Okay. So we all know this, right? Positive, negative बोलो उसको, moon and sun बोलो, ईडा पिंगाला बोलो, या feminine, masculine बोलो. Garba is a tool where you tap in the feminism in you, okay? So you tap that feminine energies in you, the feminine part of you. और इसी वजह से जो सॉन्ग्स भी है वो देवी के रिलेटेड है, क्योंकि हम इफ यू हियर अबाउट गरबा, इट इज मोर अबाउट ग्रेस, इट इज मोर अबाउट लव, इट इज मोर अबाउट इमोशंस, एक्सप्रेशन. तो वो फेमिनाइन साइड है उसका. एंड दैट इज व्हाई ऑल द वो माता की मूर्ति रखने से लेके सारी चीजें जो हम करते हैं वो फेमिनाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए करते हैं, रादर देन फॉलोइंग इट रिलीजियसली. So I would say let's keep it a spiritual this thing, and I would even urge everyone to see it more as a spiritual tool rather than a religious. Okay, no problem. So Avan, the question someone has asked over here: if we do Garba, can we come out from depression? You can answer. ओनली गरबा से डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं या नहीं, दैट डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ द डिप्रेशन दैट यू आर हैविंग. ओके, देयर आर वेरियस डिग्रीज ऑफ डिप्रेशन, देयर आर वेरियस लेवल्स ऑफ डिप्रेशन. एक मूड स्विंग को भी आजकल हम डिप्रेशन का नाम दे देते हैं. एक और ऐसा भी होता है कि सुसाइडल टेंडेंसीज भी रहती है जिसको भी हम डिप्रेशन बोलते हैं. तो डिप्रेशन इज अ वेरी ब्रॉड स्पेक्ट्रम. Yes, minor depression, low levels of depression can definitely, Garba can definitely help you, and you can come out of depression in those things, because basically what is depression? Depression is negative thoughts आना या emotional imbalance. जब हमारे ब्रेन में से प्रॉपर केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, बैलेंस केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो डेफिनेटली हमको डिप्रेशन नहीं ही होगा. Right, so you are actually balancing your hormones by that, and you are actually balancing the chemistry of your brain by doing Garba. लेकिन yes, even in higher levels of depression, जहाँ पे suicidal tendencies रहती हैं और बहुत severe cases रहते हैं, I would say meeting a psychotherapist or a psychologist or a psychiatrist is mandatory. But I have also, I know many psychologists who are, and even psychiatrists who are actually advocating dance and not just Garba, any form of dance to come out of. But yes, it has to be done under the guidance of some psychiatrist. Okay. Hope Chaitali Ben, you have got your answer from the our doctor. So as we have decided, our topics are about to finish, but अगर आपको कुछ पूछना है, you can write down in comment.
जैसे आज के दिन में हम देखने जाएं तो हम लोगों ने कवर किया द बेनिफिट ऑफ फिटनेस, लाइक गरबा का जो क्या बेनिफिट है फिटनेस को लेके। उसके बाद था देयर वाज फैट लॉस, कार्डियो फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस, बैलेंसिंग एंड सोशल एंड इमोशन। जैसे मोस्टली गरबा को हमने हर एक एस्पेक्ट से कवर कर लिया है, बस अभी पर्टिकुलर पर्सन को उसके ऊपर फील करना है जब वो खेलते हैं, बस खाली जाओ। जैसे आप जानते हैं कि भाई किसी को भी हम पूछेंगे कि भाई गरबा खेलने से क्या मिलता है, सो एवरीवन इज सेइंग लाइक बहुत मजा आता है। बट व्हाट वी आर सर्चिंग इज कि भाई मजा के पीछे कौन कौन से रीजंस हो सकते हैं या होते हैं, एंड बियॉन्ड दैट गरबा, हाउ कैन गरबा हेल्प यू एज अ थेरापी टू। जो हम लोग रिसर्च के जरिए प्लान करते हैं कि भाई हम उसको एक गरबा थेरेपी को हम ग्लोबल के सामने रखें। सो इन दैट ऑल द माय टीम ऑफ डॉक्टर्स आर हेल्पिंग मी। सो आज का जो सेशन था इज इट वाज अ लास्ट सेशन ऑफ गरबाग्राफी सीजन 2। सो आई वुड लाइक टू थैंक यू ऑल द माय डॉक्टर्स ओवर हियर। जैसे जैसे हम लोगों ने सेशंस किए उनके जो पिक्चर्स है हमारे सामने है, डॉक्टर श्वेता भाटिया, डॉक्टर केता शाह, डॉक्टर दृष्टि जाड़ावाला, डॉक्टर निश्मिन कुपर पाहुजा, डॉक्टर पूजा शाह, मिस जानवी शेखना, मिस निर्जा पारेख, डॉक्टर चिंतन पटेल एंड डॉक्टर आकृति मेहता देसाई। सो इन सभी का मैं जितना भी थैंक बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मेरे लाइफ में टर्निंग पॉइंट लाने वाले ये है, मेरे लाइफ में चेंज लाने वाले ये है, मेरे लाइफ का मिशन या गोल डिसाइड करने वाले ये लोग हैं। अगर ये लोग नहीं होते तो आई कुडंट बी रीच टू दिस प्लेटफॉर्म। और आप सबकी और भगवान की कृपा से, आपके ब्लेसिंग से, आशीर्वाद से हम लोग इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू सो मच आकृति मैम फॉर ज्वाइनिंग अस ओवर हियर, एंड विल कमिंग अप विथ न्यू थिंग्स विथ यू, एंड देखते हैं हम गरबा को कहाँ तक ले जाते हैं। माता जी की शक्ति हमें कितना एनर्जाइज करती है, कितना इंस्पायर करती है, कितना मोटिवेट करती है कि हम गरबा को एक नेक्स्ट लेवल तक ले जाए। लोगों का थिंकिंग जो है कि भाई गरबा सिर्फ मजा करने के लिए जाओ, कई लोग ऐसे हैं मैम जो कई फैमिली ऐसे हैं जो गरबा के बारे में गलत सोचते हैं कि भाई क्लास में सब एंजॉय करने के लिए जाते हैं, टाइम पास करने के लिए जाते हैं। दिस इज नॉट गरबा एट ऑल। सो हम उनका डेफिनेशंस चेंज करके लोगों को एक नया नजरिया देंगे कि भाई गरबा कैन क्योर यू, गरबा कैन हेल्प यू इन सो मेनी वेज with a new concept we are over here. So thank you very much Krutika ma'am, Akruti ma'am for joining me. Really useful and interesting session. Thank you Anisha ma'am for joining us in the whole sessions. Thank you. All sessions were very useful and informative. Thank you Chaitali ma'am, hope you like it. सो कई सारे व्यूवर्स हैं जो गुजरात के बाहर से है, कई सारे जो गुजरात से है, जो हमारे साथ एवरीडे 6 to 7 ज्वाइन होते हैं यहाँ पे to know about the Garba, so that with their support, with their positive thinking, with their positive perception only, we can take Garba to the next level. So अगर आप चाहते हो कि भाई गरबा को हम नेक्स्ट लेवल पे ले जाए, तो we have some different programs. It's like we are conducting workshops as well as seminars in college, universities, or you can say hospitals or some special schools. तो जहाँ पे हम लोग अपने गरबा को एक अलग तरीके से प्रेजेंट कर सकते हैं। सो इफ यू हैव एनी वे कि आप हमको कनेक्ट करके वहाँ पे बुला सकते हो, यू कैन विजिट माय वेबसाइट www.iagd.in, जहाँ से आपको हमारे हर एक डॉक्टर्स की भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, हमारे कंसेप्ट मिलेंगे, हमारे प्लानिंग्स भी मिलेंगे। सो प्लीज ब्लेस अस, आपके सपोर्ट से ही हम लोग गरबा को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकते हैं। So thank you very much for joining us. Thank you very much Akruti for joining over here. Thank you so much for coming. So see you soon guys with a new concept and new ways with IAGD. It's Indian Academy of Garba and Dodia. Thank you so much.